Hi everyone, so welcome back to Nuskrit. So in this video we are going to talk about trees in competitive programming, right? So far we have discussed a lot of problems based on trees, but in every problem almost we were given some root node. And that root node was based on some already defined data structure which was like a class. For example, like each node in the tree consisted of a data part, the right part and the left part. But in real scenarios where we will be dealing with the competitive programming problems in when solving problems on CodeChef Codeforces, so we won't be given tree like root node. Okay, and it will not be having left pointer and right pointer, right? So the tree is given in some other format, so we are going to discuss about that, but we will be considering an example. So that is the flow of this video. So we will be taking an input, we will be constructing our tree, and then we will be calculating the distance of each node from the root node. So that is what we want to achieve in this question, right? Say for example, let's say we will be given a tree and we would be given a source node. Fine, so from that source node I want to find out the distance of each node. Let's say for example, this one is the source node. In this example, let's say this one is source node. Let's say the distance of 1 from 1 is 0, so that is why here is 0. Then the distance of 2 from this one node is 1, that is why it is 1. The distance of 3 node is 1, that is why here is 1. The distance of node number 4 is 2, that is why here is 2. The distance of node number 5 is from the source node is 2, again that is why here is 2. And the distance of 6 is from source node is 2, so that is why here I have 2. So that's what we want to achieve. But again, we will not be given this time root node. We would be constructing our own tree like competitive programming problems. Fine, so let's try to understand this problem by some example, by some other example. So let's say in this example, let's say this is the root node. 1 is the root node. So the distance of 2 from 1 is 1. The distance of 3 is 1, right? So that is why here I have 1. Similarly, the distance of 4 is 1 from 1, right? So that is why here I have 1. Okay, means this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So my array is starting from 0 index, but because this is so that is why at 0 index the distance from 1 to 1 is mentioned here, right? So that's what we have to achieve. Fine. Okay, so now before proceeding with the actual problem, let's try to understand that how the input would be given to me. Okay, the video can be little longer because I would be focusing on how to take inputs and everything. So patience रखना पड़ेगा आपको इस वीडियो में, राइट? सो बढ़िया तरीके से वीडियो को देखेंगे, राइट? चलिए, ग्रेट. तो वापस से जाते हैं इसी एग्जांपल पे. नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दैट हाउ इनपुट विल बी गिवन टू मी. ओके, सो let's ignore this array for some time. Okay, so let's keep it here, and now let's talk about how the input would be given to me. So first of all, in every competitive programming problem, first of all I would be given some integer n, which will be denoting the number of nodes. So let's say that because in this example we are having 6 nodes, so initially you would be given a 6. So this 6 would be telling to us that okay, the number of nodes in the tree is going to be 6. Now we would be given the information about the edges. So that information, how that information would be given to us? So the information would be given to us like this. So 1 is connected to 2, okay, 1 is connected to 3, okay, 2 is connected to 4, fine, 2 is connected to 5, and then 3 is connected to 6, fine. So this is how we are given the tree. So because here we have 6 nodes, okay, here we have 6 nodes, so there will be 5 edges which would be connecting this tree. Okay, so there would be 5 edges. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. So you can see this. Okay, so if let's say if the number of nodes is n, then the number of edges is going to be n minus 1. So that is understood. But there can be a case where number of edges can also be given to you. Okay, but in most of the tree problems you won't be given the number of edges, and we have to pre-assume that okay, the number of edges is going to be n minus 1 in the tree. Okay, because we have to connect every edge without any cycle. So to connect every edge, to connect every node with some edge, we would be having n minus 1 edges in the tree. Okay, I think this is clear. Now how, so basically this information would be given to us
this information would be given to us first, and then we are going to create this tree out of this information. So that tree is not given to us. We are given this information, this edges and this number of nodes. Then we are creating this tree from this information, from this number of nodes and the information about the edges which is given to us. That is why we are creating this tree. But now you must be thinking that, okay, if this is the information, if this is the number of edges and these are the number of this is the number of node and these are the number of edges, then how to, how we are going to represent our tree? So this is a very valid question. Okay, so we would be talking about this first. Okay, fine. So nice. So we would be talking about this first. Okay, let's say this is an example. Fine. So how this tree would be converted into graph? If I talk about this tree, the input of this tree, so how the input for this tree will look like? So we would be having 8 number of nodes and the information about the edges will be given. So like 1 is connected to 2, 1 is connected with 3, 1 is connected with 4. Okay. Now 2 is connected with 5, 3 is connected with 6, 4 is connected with 7, and then 6 is connected with 8. So this is how the input would be given. And now we are going to process this input to make our tree. Okay, but the point here is that how we are going to make our tree? That's a very valid question. Okay, so we will be talking about this. Okay, so let's make it smaller, and because this is the information of this tree, so we would be having this information with us. Okay, so now let's say this is the input given to us. Now we are going to create this tree. Okay, so listen very carefully. So what we are going to do here is, first of all, we will be creating a map of number of nodes as 8. Okay, means we will be creating a map in which we will be having our number of nodes. Okay, so let's say that map is, let's say, tree. Okay, so that map is, let's say, tree. Okay, so the name of the map is tree. Now what would be having in this tree is node and the number of nodes to which the node is connected. Okay, so means in this tree, first of all, I will be filling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to 8. Okay, means the number of nodes which is given to me, I would be adding each of the number in this tree first. Fine. Okay, now after this, what I will do is I will insert an empty list for each node. Okay, so now this tree is telling me that as of now this tree is not connected to any node. Means, listen very carefully, as soon as I will come to know that the number of nodes in the tree is going to be 8, जैसे ही मुझे पता चलेगा कि number of nodes in this tree is going to be 8, so what I will do is I'm going to create a tree, means a map of 8 nodes from 1 to 8, and for each corresponding node I am going to create an empty list. Fine. Now what is this structure? This structure is telling me that as of now 1 is not connected to anyone, 2 is not connected to anyone, 3 is not connected to anyone, 4 is not connected to anyone, like this. Fine. So as of now this tree is telling me that from 1 to node 8, each of the node is not connected to anyone. Now I will process each of the edge. So let's say first of all I am going to process this 1, 2. Now what this 1, 2 is telling me? Let's try to understand that first. So now this 1, 2. Now what this 1, 2 is telling to me? This 1, 2 is telling to me that 1 is connected with 2. 1 is connected with 2. Okay. Now let's move to the next node. 1 is connected to 3. Okay, 1 is connected to 3. Okay, fine. Now next one, 1 is connected to 4. Means 1 is connected to 4. Okay. Now next edge, 2 is connected to 5. 2 is connected to 5. Fine. Now next edge, 3 is connected to 6. 3 is connected to 6. Okay. Now next edge, 4 is connected to 7. 4 is connected to 7. Okay. Now 6 is connected to 8. Means 6 is connected to 8. So that is the information that I have fetched out from this map. Fine. So means this tree is now telling me that, okay, 1 node is connected to 2, 3, 4. 2 node is connected to 5. 3 node is connected to 6. 4 is not connected to 7. Okay. So this is how I have created my graph. Now, whenever we create a graph on pen and paper, we do like this. Or tree. Means whenever we create a tree, we do like this. So this is our tree. Okay. But actually, when we process our tree in competitive programming, so we create a map like this. Now this map is actually our graph. This map is actually our tree. So 1 is connected to 2, 3, 4, 2 is connected to 5, 3 is connected to 6, 4 is connected to 7.
6 is connected to 8, like this. Fine. So this is how we are going to create our tree. So that's the very first step. So what would be the structure for this? What would be the flow for this? Means first of all we would be given a node. So as soon as we will be having the input of node, we are going to create a map of n number of nodes, means whatever n is given to us, with n number of nodes with empty list. Then what we will do, we will run a loop from 1 to n minus 1, means हम n minus 1 times अपना loop चलाएंगे, because if there are 8 number of nodes then the edges is going to be n minus 1. So you can see if there are 8 nodes, the number of edges are going to be 7, 1 2 3 4 5 6 7. And in the previous example I have shown you that if the number of nodes are 6, then the number of edges are going to be 5. Fine. So first of all what we'll do is we will be having some input n, then we are going to create a map in which we will be having n number of nodes, exactly n number of nodes, and corresponding to each of the key in the map we would be having empty list as a value. Fine. Okay, now after processing this map, empty map, now what we will do, we will be taking the input edges, we will be taking the edges as input. Okay, so for each of the n minus 1 lines, what we will do is we will take two separate integers, like 1 2. So this is telling me, okay, 1 is connected to 2, 1 is connected to 3. So as soon as I will take an input, I am going to do this. मीन्स 1 पे हम 2 को ऐड करेंगे, 1 पे 3 को ऐड करेंगे, 1 पे 4 को ऐड करेंगे, देन 2 पे 5 को ऐड करेंगे, लाइक दिस. सो व्हाट इट विल डू इज एक्चुअली दिस विल फिल आवर ट्री. ये हमारा ट्री को फिल कर देगा. तो ये एक्चुअल में हमारा ट्री जो एक्चुअली में नीडेड है वो ट्री हमारा ये बना देगा. ओके फाइन. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट, so this is how we will be creating a tree. So now let me show you the code for this processing first. Okay, then we will talk about our actual problem that we want to do. Okay, means we want to calculate the distance from the source node to every node. Okay, we will do this, but as of now what we will do is we would see the code for creating this tree and this input. Okay, so now let's try to understand that first. So let's look at this function. So this is the main function. I will show in each of the languages, don't worry about it, but as of now let's first see this in Java. You can skip this if you want to exactly see in C++ or Python. Fine. Okay, so this is how we are going to take input. Means through the buffer reader class I am going to take the input. Fine. Means if you code in Java, I think you must be familiar with this. You could even use scanner class also. Scan is equals to new scanner. Okay, then you could have write something like this, scan dot next int ऐसे करके. ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले टेस्ट केस इनपुट कराया. तो कोड शेफ एंड कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम में सबसे पहले टेस्ट केस को इनपुट कराया जाता है, राइट. सो मींस टी इज द टेस्ट केस. तो टेस्ट केस कैसे इनपुट करेंगे, रीडर से रीड लाइन किया, ये स्ट्रिंग में इनपुट लेता है एंड देन वी आर पार्सिंग इट इनटू इंटीजर. ओके, सो आई थिंक दैट दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम टू यू. Fine. Now for each test case, what we are going to do, we would be taking a number n as an input. Now we are creating a सबसे पहले एकदम empty tree बना रहे हैं, means empty map है ना. empty map किसका मैप, जिसके अंदर की होगी इंटीजर और वैल्यू क्या होगी, एक लिस्ट होगी अपने आप में. लिस्ट किसकी होगी, इंटीजर्स की लिस्ट. नाउ मैंने क्या बोला था, जैसे हम एक इनपुट कराएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फिल दिस ट्री. सबसे पहले हम इस ट्री को फिल करेंगे. तो ट्री को कैसे फिल कर रहे हैं कि 1 से लेकर के n तक के बराबर, 1 से लेकर के n तक के बराबर आप क्या करो, ट्री के अंदर हर एक वैल्यू डाल दो, 1 2 3 4 5 6 करके, और उसके कॉरेस्पॉन्डेंट हर एक उसके सामने एक लिस्ट इनिशियलाइज कर दो, एम्प्टी लिस्ट. Okay, so this is the code, line number 32, 33, 34 and 35, in which we are creating an empty map. Okay, and then we are processing from 1 to n number of nodes with an empty list. Okay, now see this one. Now this is the very important step. Now we would be having n minus 1 number of lines, from 0 to n number of minus 1 line, n minus 1 my loop is going to run. Now for each I am going to take two inputs, two space separated inputs like this, 1 and 2. So by default we would be taking this as a string. Now we will be converting this string into a string array like this. Okay, so we would be splitting this. So मैंने एक string को input कराया, then string को split कर दिया by through these spaces. So मेरे पास एक array मिल गया, right, string का array, जिसके अंदर पहले इंडेक्स पर 0 इंडेक्स पर रखी है वैल्यू 1 एंड सेकंड फर्स्ट इंडेक्स पर रखी है वैल्यू 2. नाउ मैंने दोनों को पार्स किया, स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स की वैल्यू को पार्स किया, स्ट्रिंग के 2 के, तो मैंने ए के पास आ गया मेरे पास 1 एंड बी के पास आ गया मेरे पास 2. नाउ व्हाट आई विल डू इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आई थिंक यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस. तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं ट्री के 1 पे, देखो ट्री एक मैप है, तो
इस वन पे खाली लिस्ट पड़ी होगी, तो मैंने क्या किया, पहले इस वन पे जो खाली लिस्ट पड़ी है उसको गेट किया, गेट करके उस पे ऐड किया मैंने बी को, मींस इस लिस्ट के अंदर मैंने ऐड किया किसको, 2 को। ओके, नाउ ट्री के वन पे जो लिस्ट पड़ी थी उसमें मैंने 2 को ऐड कर दिया, ठीक है, मींस उस लिस्ट में 2 को ऐड किया है। इस वन की पे जो लिस्ट पड़ी है उसमें 2 को ऐड नहीं किया, इस वन से मैंने एक लिस्ट को फैच किया सबसे पहले और उसमें मैंने ऐड किया किसको, 2 को, तो इस लिस्ट में अब 2 ऐड हो गया है। तो मुझे फाइनली इस एडेड लिस्ट को वापस से इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, ट्री में पुट करो किसको, वन को पुट करो, एंड देन जो तुमने नई लिस्ट बनाई है उसको तुम ऐड कर दो उसके अंदर। तो अब एक्चुअली एडेड लिस्ट, एडेड 2, वो लिस्ट जिसके अंदर 2 एडेड है उसको आप अपेंड कर रहे हो। सो दैट इज हाउ यू आर अपेंडिंग 2 at 1. So for the next time, if you will be getting 3, 4, so what you will do is, first of all you are getting the list which is present at this 3. Now you would be adding 4, एंड वो जो लिस्ट बनी जिसके अंदर 4 आपने ऐड किया, फाइनली आप उसको 3 वाली वैल्यू पे ऐड कर दोगे इस तरीके से। सो दिस इज द सिंपल स्टेप आई थिंक। सो नाउ दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर ट्री। नाउ आफ्टर दिस we are processing our actual problem that we are going to discuss in this particular video. So now let's talk about that problem. Okay, first of all we would be talking about the scenario. Okay, but before starting that, let's look at the code in C++ also, Python also. So this is a simple, so we are taking an input integer t which is the test case. Now our loop will be running for t number of test cases. For each test case I will be taking an input number n, and then I will be creating a simple empty dictionary. Then in this empty dictionary I am going to fill the values from 1 to n. Okay, so for each of the key I am going to add the empty list. Now for each n minus 1 number of lines I am going to take 2 integers, 2 space separated integers, एंड मैं क्या करूंगा, ट्री के ए पे, मीन्स ट्री के ए पे अपेंड कर दूंगा बी को, लाइक दिस। मीन्स वो जो ट्री मैंने मैप बनाया, ट्री के अंदर जो 1 2 3 इस तरीके से लिस्ट पड़ी है, तो जो भी मैं एज को इनपुट कराऊंगा, लेट से 1 2, तो मैं क्या करूंगा, ट्री के 1 पे जो लिस्ट पड़ी है, ट्री के 1 पे जो लिस्ट पड़ी है उसमें क्या करूंगा, अपेंड कर दूंगा किसको, 2 को, बी को। मीन्स दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस मैप। So means when you will be running this program, so what you will do is you just try to print here. आप ट्री को प्रिंट करके देखो यहाँ पे, आफ्टर दिस आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा मैप काम कर रहा है, ठीक है। मैं इनपुट एंड ऑल सब लेकर के दिखाऊंगा, डोंट वरी, यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट इट, बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन डेप्थ, डोंट वरी, फाइन, ओके ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आवर एक्चुअल प्रॉब्लम। सो C++ का भी कोड यार एक्जैक्टली सेम है, आप देख सकते हो उसको भी, ठीक है, तो C++ वालों को भी समझ में आ जाएगा, इट्स रियली नॉट अ बिग डील, फाइन। So now let's talk about the actual problem that we were discussing. Fine. So what was the problem? So that we would be given a root node. हमें एक root node मिलेगा and we want to fetch the distance of each node from this root node. आप ध्यान से सोचने की कोशिश करो यार, बाइनरी ट्री को रिकॉल करो। जब मैंने आपको बाइनरी ट्री पढ़ाया था तो उसमें क्या करते थे, मान लो जो रूट नोड थी, तो जो रूट का लेफ्ट था, रूट का राइट था, हम उन दोनों को प्रोसेस करते थे, उनको हम BFS कॉल करते थे उस पर। याद करिए, एक बार याद करने की कोशिश करिए, है ना। मीन्स 1 का एडजेसेंट 2 है, 1 का एडजेसेंट 3 है, 1 का एडजेसेंट 4 है, देन ये जो 5 है ये 2 का एडजेसेंट है, ये जो 6 है 3 का एडजेसेंट है। तो याद करने की कोशिश करो, पहले क्यू के अंदर 1 ऐड होता था, फिर 1 से आप इसका लेफ्ट एंड राइट एक्सप्लोर करते थे, तो आप 2 और 3 को ऐड करते थे लिस्ट के अंदर, ओके। देन आप 2 को पॉप करते थे नेक्स्ट पॉइंट इन टाइम पे, मतलब 1 को पॉप किया तो 2 और 3 को ऐड करते थे, देन 2 को पॉप करते थे तो 2 का एडजेसेंट ऐड करने की कोशिश करते थे, लाइक 5। याद करने की कोशिश करो, ट्राई टू रिकॉल, है ना, आप ऐसे करने की कोशिश करते थे, है ना। देन तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन BFS एल्गोरिथम, फाइन। this question is actually based on BFS algorithm. Now let's talk about how BFS is working here, okay, and how we will process BFS on this kind of tree, fine. So let's talk about that first. See, मैं क्या करूंगा यार, मेरे को सोर्स नोड मिलेगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस सोर्स नोड को अपनी क्यू के अंदर इंसर्ट करा दूंगा। लेट्स से मैंने 1 मेरी सोर्स नोड है, मैंने 1 को क्यू के अंदर इंसर्ट करा दिया, ओके। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इस 1 को पॉप करूंगा। अच्छा, एक काम और करूंगा कि इस 1 के डिस्टेंस में 0 मार्क कर दूंगा कि 1 से 1 के डिस्टेंस 0। तो सिंपली कैसे करूंगा कि डिस्टेंस ऑफ जो भी मेरे पास सोर्स नोड मिलेगी, मैं सोर्स नोड के डिस्टेंस पे 0 डाल दूंगा, और मुझे जरूरत भी नहीं है डालने की, क्योंकि जो मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो मैं एरे बनाऊंगा उसको मैं बाय डिफॉल्ट पूरे एरे को 0 से फिल कर दूंगा, तो सोर्स से सोर्स के डिस्टेंस मेरे को ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो हम कर लेंगे। आई थिंक दैट्स नॉट अ बिग डील, फाइन। नाउ जैसे मेरे को जो सोर्स नोड मिला 1, उसको मैंने सबसे पहले क्यू के अंदर इंसर्ट करा। देखो जो बोल रहा हूँ ना एग्जैक्टली वही कोड में भी लिख दूंगा, और मैं करके भी दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहिए। मेरे को जो भी सोर्स नोड मिला मैंने उसको क्यू के अंदर इंसर्ट किया, ठीक है, इंसर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे यहाँ से, तो मैंने पॉप किया,
तो लेट्स से पॉप्ड वैल्यू मैंने कुछ ऐसे लिखा, दैट करंट इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप, ठीक है, ऐसा ज्यूम कर लो कि मैंने क्यू के अंदर से पॉप किया करंट वैल्यू को, ठीक है, एंड वो करंट वेरिएबल के नाम के अंदर मैंने इंसर्ट करा लिया। सोर्स नोड जो भी थी मैंने ऐड किया था क्यू के अंदर, मैंने उसको पॉप किया और उसको पॉप करने के बाद मैंने करंट के अंदर स्टोर कराया। अब देखो मुझे क्या करना है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब देखो ऐसा कुछ होगा कि 1 से जो भी नोड कनेक्टेड है उसकी डिस्टेंस 1 होगी, उसकी डिस्टेंस 1 होगी, तो 1 से कौन कौन कनेक्टेड है ये इन्फॉर्मेशन मेरे को कौन देगा, ये ट्री मेरे को ये इन्फॉर्मेशन देगा। ध्यान से देखो, तो अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूं कि मेरे को ट्री के करंट पे जो लिस्ट पड़ी है मेरे को वो चाहिए, ट्री के करंट पे, ट्री के करंट मतलब ट्री के 1 पे, करंट क्या है 1 ही तो है, तो ट्री के 1 पे, ट्री के 1 पे मतलब ये वाली लिस्ट मैं इसको प्रोसेस करना चाहता हूं, उसके हर एक एलिमेंट को प्रोसेस करना चाहता हूं। और मैं क्या करूंगा, मैं इस डिस्टेंस, मान लो इस एरे का नाम है डिस्टेंस, तो मैं क्या करूंगा डिस्टेंस ऑफ 2 पे जो भी डिस्टेंस ऑफ 1 थी +1 कर दूंगा। देन 3 के, तो डिस्टेंस ऑफ 3 पे जो भी मेरे पास डिस्टेंस ऑफ 1 थी मैं उसको +1 कर दूंगा, क्योंकि करंट से एक्सप्लोर हो रहे हैं ना भाई, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, नोड नंबर 4 किससे एक्सप्लोर हो रहे हैं, इस 1 नोड से। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, ट्री के 1 पे मींस ट्री के करंट पे जो लिस्ट पड़ी है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लिखने की कोशिश करेंगे, दैट फॉर ईच नेबर, फॉर ईच नेबर किसके अंदर, फॉर ईच नेबर इन ट्री के 1 पे, ट्री के 1 पे, ठीक है, फॉर ईच नेबर इन ट्री ऑफ 1। तो ट्री ऑफ 1 पे जितना भी नेबर प्रेजेंट है हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस ऑफ नेबर, डिस्टेंस ऑफ नेबर, डिस्टेंस ऑफ नेबर पे क्या डाल देंगे, जो भी हमारे पास डिस्टेंस ऑफ करंट थी, डिस्टेंस ऑफ करंट थी +1। तो देखो नेबर पहले कौन है 2, डिस्टेंस ऑफ करंट, करंट नोड कौन है 1, तो करंट नोड की डिस्टेंस कितनी है 0, तो 0 पे 1 को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ 2 पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ 3, अगला नेबर कौन होगा 3, तो डिस्टेंस ऑफ 3 पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ 0 मींस डिस्टेंस ऑफ करंट, करंट क्या है 1, तो 1 पे डिस्टेंस कितनी पड़ी 0, तो 0 + 1 मींस अगेन 1, एंड 4 पे भी इस तरीके से 1 आ जाएगा। फाइन, and what we will do, we will just add these 3 elements into our queue, 2, 3 and 4। 2 को प्रोसेस किया, 1 का पहला एडिशन 2 को प्रोसेस किया, उसको क्यू के अंदर ऐड किया और उसकी डिस्टेंस निकाल ली। फिर नेक्स्ट नेबर को प्रोसेस किया, क्यू के अंदर ऐड किया, उसकी डिस्टेंस निकाल ली। नेक्स्ट नेबर को प्रोसेस किया, उसको डिस्टेंस, उसकी क्यू के अंदर ऐड किया, उसको डिस्टेंस निकाल ली। फाइन, अब देखो क्यू के अंदर जो नेक्स्ट वैल्यू वो मेरे पास है 2, तो क्यू फिर से पॉप करेंगे, तो इस बार करंट कौन बन जाएगा, इस बार करंट बनेगा 2। मैंने ट्री का 2 का, मैंने ट्री का 2 मींस करंट को मैंने 2 के अंदर, मींस करंट के अंदर मैंने 2 को रखा, एंड अब मेरे पास ट्री ऑफ 2 को मैं एक्सप्लोर करूंगा। तो नाउ फॉर ईच नेबर इन ट्री ऑफ 2, तो ट्री ऑफ 2 पे कौन नेबर प्रेजेंट है 5, तो मैंने कहा 5 को ऐड करो, एंड ट्री ऑफ 5 पे जो वैल्यू आएगी, ट्री ऑफ 5 पे जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी डिस्टेंस ऑफ करंट, और करंट इस बार कौन है 2 है इस बार करंट, तो डिस्टेंस ऑफ 2 कितनी है देखो 1 है, और 1 में मैं 1 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सो दैट इज वाई द डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम 5, or you can say distance of 5 from root node 1 is going to be 2, because 2 तक की डिस्टेंस आपको पता थी 1, 1 से 2 तक की डिस्टेंस आपको पता थी 1, नाउ यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ 5 थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 2, तो डिस्टेंस ऑफ 2 इज ऑलरेडी 1, तो 1 पे 1 ऐड करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ 5 हो जाएगी 2 आपके पास। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। Okay, so don't worry, I will be taking a small example and I will tell you the complete process and then we will look at the code. Okay, so ये थोड़ा एग्जाम्पल बड़ा है तो पिछले वाले एग्जाम्पल पे हम बात कर लेते हैं। So let's talk on this array. Fine. So this is our actual answer. तो हम इसके बारे में बात कर लेंगे. But before that, let's try to create some queue and then we would be processing each step by step. So पहले इसका मैप क्रिएट कर लेते हैं। मैंने कहा ट्री कैसा दिखेगा इसका, तो इसका ट्री कुछ ऐसा दिखने वाला है। इसके अंदर नोड्स कितनी होगी 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। तो 1 पे क्या रखा होगा, 1 पे रखा होगा आपके पास 2 एंड 3, क्योंकि 1 इज कनेक्टेड टू 2 एंड 3। 2 किस किस से कनेक्टेड है 4 एंड 5 से कनेक्टेड है, फाइन। 3 किस से कनेक्टेड है ओनली 6 से कनेक्टेड है। 4 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, 5 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, 6 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। दिस इज योर मैप, फाइन, दिस इज योर मैप। नाउ लेट्स टेक आउट द क्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्यू के अंदर 1 नोड मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, क्यू के अंदर सोर्स नोड को ऐड कर दो, जो भी सोर्स नोड होगी वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें लेट्स से 1 नोड मिला। अब जब हमें वन नोड मिला, ठीक है, जब हमें 1 नोड मिला तो वी आर अज्यूमिंग दैट आवर ट्री इज रूटेड एट 1। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा ट्री जो है वो रूटेड है 1 पे, ठीक है। तो हमें 1 नोड मिला, हमने 1 को क्यू के अंदर ऐड किया। जब 1 को क्यू के अंदर ऐड किया तो हमने इसको पॉप किया यहाँ से। तो पॉप करते वक्त इसकी जो डिस्टेंस होगी वो बाय डिफॉल्ट 0 होगी। अब जब हमने इसको पॉप किया तो हम इसके एडजेसेंट को ढूंढेंगे। तो एडजेसेंट कहाँ पे मिलेगा, ट्री ऑफ 1 पे, जो भी नोड पॉप हुई ट्री ऑफ पॉप्ड नोड पे, हमें जितने भी इसका एडजेसेंट है उनको एक्सप्लोर करो, क्यू के अंदर ऐड करो।
अब देखो क्यू के अंदर ऐड हुए तो साथ के साथ जैसे हमने ऐड किया 2 को, तो हम 2 की डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे। तो 2 की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ 1 मींस 0 प्लस 1, तो दैट इज वाई यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट नोड क्या है 3, तो हमने 3 को ऐड किया और 3 पे जो भी डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, क्योंकि 1 से एक्सप्लोर हो रहे हैं ना, अभी हम इसी पे लूप चल रहे हैं, तो करंट नोड हमारी 1 है, तो 1 पे जो डिस्टेंस है प्लस 1, तो दैट इज वाई यहाँ पे भी 1 आपको दिखाई दे रहा है। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी वुड पॉप दिस, हम इसको पॉप करेंगे 2 को। हमने 2 को पॉप किया, 2 को पॉप करने के बाद हमारे पास इसका एडजेसेंट है 4 एंड 5, तो मैंने इसके एडजेसेंट को ऐड किया पहले 4 को, तो जैसे ही मैंने 4 को क्यू के अंदर ऐड किया तो मैं इसकी डिस्टेंस भी कैलकुलेट करूंगा। तो डिस्टेंस ऑफ 4 कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ 2, क्योंकि वो 2 से एक्सप्लोर हुआ इस बार, लूप इस बार, इसके लिए करंट वैल्यू इस बार 2 है, करंट नोड 2 है, तो 2 डिस्टेंस ऑफ 2 प्लस 1, तो डिस्टेंस ऑफ 2 कितनी है 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे 3 पॉप करेंगे इसी तरीके से, 3 से कौन पॉप हो रहा है, देखो 3 से कौन एक्सप्लोर हो रहा है 6, तो मैं 6 को ऐड करूंगा। अच्छा उससे पहले भी 2 के लिए लूप चल रहा है, क्योंकि नेबर उसका बच रहा है 5 बच रहा है, तो 5 भी ऐड होगा। ठीक है, उसके लिए 5 के लिए भी 2 वैल्यू हो जाएगी ऐड। देन उसके बाद हम 3 को पॉप करेंगे, 3 को पॉप करने के बाद 6 इज द एडजेसेंट, तो 6 को क्यू के अंदर ऐड करेंगे एंड देन इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी भी, क्योंकि 3 पे डिस्टेंस कितनी थी 1 थी, 3 पे डिस्टेंस देखो 1 थी, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। फाइन, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो एक बार आप खुद से एग्जाम्पल लो एंड ट्राई टू रन दिस, यू विल डेफिनेटली गेट इट। ठीक है, और देखो एक ही चीज है ब्रह्मास्त्र कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ट्रीज को मास्टर करने का, आपको इसी सेम कोड को जो मैं करा रहा हूँ इसी को बार बार करने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा पक्का। अब देखो लेट्स टॉक अबाउट द कोड। देखो सेम अप्रोच लगाएंगे, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, BFS नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसमें हम नंबर ऑफ नोड्स भेज रहे हैं, सोर्स नोड भेज रहे हैं, अपना ट्री भेज रहे हैं जो हमने ट्री बनाया था। फाइन, ओके, ये हमें क्या करेगा, डिस्टेंस एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, डिस्टेंस एरर रिटर्न करेगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस एरे बना रहे हैं n+1 साइज का। देखो n+1 साइज का क्यों बना रहे हैं, क्योंकि लेट्स से आपके पास 8 नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो हम चाहते हैं कि डिस्टेंस एरे हम 9 साइज का बनाएं, क्योंकि 0 से इंडेक्स शुरू होगा ना, तो 0 से लेकर के 8 तक बनेगा। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कोई नोड है जिसका नाम लेट्स से 8 है, तो मैं डायरेक्टली डिस्टेंस ऑफ 8 को एक्सेस करूं, डिस्टेंस ऑफ 7 को एक्सेस ना करना पड़े, तो 0 वाले इंडेक्स को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, दैट इज वाई वी आर क्रिएटिंग द साइज ऑफ डिस्टेंस एरे ऑफ n+1 साइज। सबसे पहला स्टेप क्या है, क्यू बनाओ, क्यू के अंदर बाय डिफॉल्ट सोर्स नोड को ऐड करो। अब देखो एग्जैक्टली सिंपल केस है जो कि हम एग्जैक्टली BFS में रन करते थे ट्री में। ठीक है, आप वापस से जाकर के एक बार चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा सारा कुछ, कि जब तक क्यू खाली नहीं हो जाएगी तब तक हम करंट नोड को पॉप करेंगे। करंट नोड जो हमने पॉप की, अब देखो उसके एडजेसेंट को हमें प्रोसेस करना है, जो भी आपके पास करंट नोड आई उसके एडजेसेंट, और उसका एडजेसेंट कहाँ पे मिलेगा, ट्री के करंट पे, और हमें ट्री यहाँ पे मैप मिल रहा है, ट्री के करंट पे हम एडजेसेंट को प्रोसेस करेंगे एंड फॉर ईच चाइल्ड वी आर प्रोसेसिंग। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड को कैलकुलेट करेंगे, कैसे, डिस्टेंस ऑफ करंट नोड +1, सिंपल, और बस क्यू के अंदर पुश कर दिया चाइल्ड को एंड फाइनली वी आर रिटर्निंग आवर डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस के अंदर 0 इंडेक्स भी इंक्लूड होगा, इसलिए हम 1 से प्रिंट कराना शुरू करेंगे, तो 1 से लेकर के n तक जाएंगे एंड डिस्टेंस ऑफ i को प्रिंट करा देंगे। एंड इसी तरीके से एक्जैक्टली सेम कोड हमने यहाँ पे भी लिखा है कि हमने क्यू ली, हमने क्यू के अंदर बाय डिफॉल्ट सोर्स नोड को अपेंड किया, और हमने एक डिस्टेंस एरे लिया जिसमें हमने सारी की सारी वैल्यूज को 0 भर दिया n+1 साइज का। फिर जब तक क्यू हमारे पास है तब तक हम क्या करेंगे, करंट नोड को पॉप करेंगे, और फिर फॉर ईच नेबर इन ट्री ऑफ करंट, मींस ट्री के करंट पे जितने भी इस करंट नोड के नेबर है उनको हम प्रोसेस करेंगे 1 बाय 1, हर बार क्यू के अंदर ऐड करेंगे, और उस करंट नोड की हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बाय डिस्टेंस ऑफ करंट +1, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ करंट से एक्सप्लोर हो रहा है ना, करंट से एक्सप्लोर हो रहा है, तो जो भी डिस्टेंस करंट की होगी उसमें हम +1 करके ऐड कर देंगे डिस्टेंस एरे के अंदर, and then finally we will return this distance array. And the exactly same way we have done in Java also. We have taken a queue, okay, of integer, क्यू के अंदर हमने ऑफर किया सोर्स नोड को, हमने एक डिस्टेंस एरे लिया n+1 साइज का जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट सारी वैल्यूज 0 हो गई, न्यू इंट अपने आप ही 0 इनिशिएट कर देगा। देन जब तक हमारे पास क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हम क्या कर रहे हैं, क्यू के अंदर से करंट वैल्यू को कॉल कर रहे हैं, एंड देन फॉर ईच नेबर इन दिस ट्री के गेट करेंगे करंट पे जो एरे लिस्ट हमें मिलेगी, ट्री के करंट पे जो हमें एरे लिस्ट मिलेगी उस पर हम हर एक नेबर को प्रोसेस कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्यू के अंदर ऐड कर रहे हैं एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ दिस नेबर जस्ट बाय करंट विद द हेल्प ऑफ करंट, जिससे वो एक्सप्लोर हो रहा है ना, एंड फाइनली वी आर रिटर्निंग अ डिस्टेंस। ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि डिस्टेंस हम 0 से प्रिंट नहीं कराएंगे, 1 से प्रिंट कराएंगे, क्योंकि 0 इंडेक्स से हमारा कुछ है नहीं, हमारी जो नंबर ऑफ नोड्स है वो 1 से लेकर के n तक गिवन है, 0 नंबर ऑफ नोड गिवन नहीं है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ आप लोग को। ठीक है, सो रन में पाइथन का कोड कर देता हूँ, फाइन, सो दैट कि आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार इसी वाले टेस्ट केस पे हम रन करेंगे। ठीक है, सो हम रन करेंगे इस वाले टेस्ट केस पे, ठीक है, ये वाला ट्री हम बनाएंगे एंड देन वी शुड गेट दिस आंसर। फाइन, चलिए इसको रन करके देखते हैं। ओके, सो मैंने रन किया
और वो इनपुट मांग रहा है, तो कितनी नंबर ऑफ नोड्स थी हमारे पास, 8 नंबर ऑफ नोड्स थी। पहले टेस्ट केस में इनपुट कराना पड़ेगा, तो मैंने कहा 1 टेस्ट केस है, बस एक ही टेस्ट केस पे बात करते हैं। मैंने कहा कितनी नंबर ऑफ नोड्स है, 8 नंबर ऑफ नोड्स है। अब देखो वो एजेस इनपुट मांग रहा है, मैंने कहा 1 से 2 कनेक्टेड है, 1 से 3 कनेक्टेड है, 1 से 4 कनेक्टेड है। फिर हमारे पास 2 हमारा 5 से कनेक्टेड था, देन हमारे पास जो हमारा 3 था वो हमारा 6 से कनेक्टेड था, और जो 4 था वो 7 से कनेक्टेड था, एंड देन हमने 6 को 8 से कनेक्ट किया हुआ था। ओके, एंड देखो दी हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, सो एग्जैक्टली दिस इज आर ट्री। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बना भाई, 1 नोड कनेक्टेड है 2 से, 3 से एंड 4 से। ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड, देखो ध्यान से। ठीक है, देन 2 मेरे पास 5 से कनेक्टेड है, 3 मेरे पास 6 से कनेक्टेड है, 4 मेरे पास 7 से कनेक्टेड है, एंड देन 6 मेरे पास 8 से कनेक्टेड है। तो आप 1 की डिस्टेंस देखो, 1 की 1 से डिस्टेंस कितनी है, 0। 1 से 2 की डिस्टेंस कितनी है, 1। 1 से 3 की डिस्टेंस कितनी है, 1। 1 से 4 की डिस्टेंस कितनी है, 1। 2 से 5 की डिस्टेंस कितनी है, 2। 3 से 1 से 5 की डिस्टेंस कितनी है, 2। 1 से 6 की डिस्टेंस कितनी है, 2। 1 से 7 की डिस्टेंस कितनी है, 2। एंड 1 से 8 की डिस्टेंस कितनी है, 3। तो हम एक्चुअली सोर्स नोड से हर एक नोड के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो ये एक सेल्फ मेड प्रॉब्लम थी, जिसमें मैंने आपको जस्ट ये सिखाया कि किस तरीके से हम इनपुट हमें लेना है। तो हमें ट्रीज के केस में इस तरीके से इनपुट दिया होता है, और हमें उस इनपुट से ट्री बनाना पड़ता है अपना, और ट्री का बनाने का मतलब है हैश मैप। तो आपको उस हैश मैप पे इटरेट करना आना चाहिए। देखो थोड़ा सा खुद से भी इस पे एनालिसिस करना, देन ओनली यू वुड बी हैविंग अ ग्रेट आइडिया अबाउट दिस। ठीक है, सिर्फ वीडियो को देखने से मजा नहीं आएगा, आप एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो, ट्राई टू रन इट, ट्राई टू चेक कि कैसे हैश मैप काम कर रहा है, and then you can come and then you can see this problem again, see this video again, you can watch this video again to get better idea. And after this we will be solving 1 or 2 problem also from Codeforces and or CSES platform etc etc, है ना, to just to make you you know very clear about this concept. फाइन, चलिए इस वीडियो में इतना ही। एंड कोड मैंने लिंक, इस पे कोड का लिंक मैंने अटैच कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप इसको चेक कर सकते हैं, राइट। एंड आई होप यू आर enjoying. That's it from my side for this video. Let's meet in the next video. Bye bye for now.